Hello students, welcome to your physics class, and today I will discuss the second type of projectile motion, which is known as horizontal projectile motion. Okay, in this case we project a projectile from any height. Actually, let's suppose an object is projected from the point O above the ground with velocity with initial velocity u along OX. This is x-axis. Actually, we have taken this x over here. So this projectile is projected along this OX direction. Actually, now students, actually in this case this u remains constant. So we have taken this horizontal velocity remains constant because we ignore air resistance. Okay, and the second thing is vertical velocity, which goes on increasing due to gravity. Students, as the projectile comes in contact of the gravity, actually, then its speed increases, its vertical velocity increases. Due to this increase in vertical velocity, the projectile will bend actually the will bend actually along along the ground, actually towards the ground. ओके, तो जब स्पीड जो है वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रोजेक्टाइल जो है वो अर्थ की तरफ बैंड करना शुरू हो जाएगा. इस तरह से उसका पाथ ओके आता है. एक्चुअली इस पाथ के अलग वो मूव करता है. क्लियर? तो फिर ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है. पहला ये है कि जो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है. ओके, एंड सेकंड थिंग इज वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्चुअली ड्यू टू द ग्रेविटी. And due to this actually reason, the path followed by the projectile will be like this. Now actually we'll find what type of path covered by the projectile. इसका पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टाइल का इस केस में. ओके, इसको हम निकालते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल से. ओके, ट्रेजेक्ट्री क्या एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल का पाथ ही होता है. तो किस टाइप का पाथ उसका जो है आपको मिलता है. Then to find this thing, actually, let's suppose at any time t the object reaches at point P. Okay, मान लेते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो O से स्टार्ट करता है u वेलोसिटी से. u एक्चुअली इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो किया गया है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है. लेकिन स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम दोनों कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स की बात भी करते हैं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं. जब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी गिवन एक्चुअली टू दिस ऑब्जेक्ट, एक्चुअली टू दिस प्रोजेक्टाइल, that is u in u which is the horizontal velocity. But at the same point O, the vertical velocity will be 0. The vertical velocity comes in this projectile after some time, actually after 1 second. Okay, it gains some vertical velocity because of this gravity, actually because of the gravitational force. Clear? So students, let's suppose the projectiles comes at this point P at any time t. Clear? And it covers x distance on x-axis and y distance on this y-axis actually. So this is horizontal distance and this is vertical distance. Clear? And at this point P, the velocity of projectile becomes v. This is the final velocity. Okay, and when we resolve this velocity into two components, vx and vy, then you will see this vx is a horizontal component and vy is a vertical component. Clear? And theta is an angle with this horizontal component. Now students, will find the trajectory equation. Okay, trajectory of projectile. जैसे इससे पहले हमने निकाला था इक्वेशन, उसी तरह से हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन फाइंड करके ये मालूम हो जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो किस टाइप का है. ठीक है. Suppose at any time t the object reaches at P, then horizontal motion s is equal to u plus half a d square. So we'll take all the components horizontally. S is equal to x, the distance covered horizontally, which is x actually. And ux is constant. This is a horizontal velocity which remains constant, and ax will be equals to 0 because horizontal velocity is constant, so acceleration will be 0. This depends on this actually, क्योंकि u constant है इसलिए acceleration 0 होगा. Then student, putting these values over here, then you will get what? X is equal to ut. Okay, this is equation 1, and from this equation we find the value of t is equal to x upon u. Now students, will take the vertical motion s is equal to u plus half a d square, and in case of vertical motion the components will be s is equal to y. This y is the distance covered along vertically actually, and uy is 0.
बिकॉज यू नो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। देखिए जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल ओ पर होगा तब उस केस में उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, तो यू बाई जीरो होगा, क्लियर। उसके बाद टी टाइम बाद उसके पास एक वेलोसिटी वी बाई आ जाती है, और वी एक्स एक्चुअली क्या होगा, ये वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो कि यू एक्स के ही इक्वलेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहनी है, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, क्लियर। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो उसका वेलोसिटी हर एक सेकंड में इंक्रीज होता है। मान लीजिए अगर उसका स्टार्टिंग में जो यू वाई है वो जीरो है, तो एक सेकंड के बाद में उसका जो वेलोसिटी है, अगर इसके ऊपर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसका मीन्स होता है 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड, यानी कि इन ईच एंड एवरी 1 सेकंड द स्पीड इंक्रीजेस बाय दिस 10 मीटर पर सेकंड, ओके। सो आफ्टर 1 सेकंड द वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर अनदर 1 सेकंड इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट जब एक्सेलरेशन g 10 लगता है तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी का स्पीड जो है वो डाउनवर्ड केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसी तरह से प्रोजेक्टाइल पे भी आप देखेंगे, लेकिन इसका जो मोशन है वो स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये स्ट्रेट डाउनवर्ड क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इस केस में आपने देखा ये जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक सिंगल वेलोसिटी है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास दोनों टाइप्स की वेलोसिटीज होती हैं, यानी उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, तब उस केस में उसका पाथ इस तरह का होगा, ठीक है, वो स्ट्रेट डाउनवर्ड नहीं आएगा। स्ट्रेट डाउनवर्ड तब आता है जब उसके पास एक ही टाइप का वेलोसिटी होता है, वर्टिकल वेलोसिटी होता है। अब क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, इसलिए उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा और वर्टिकल वेलोसिटी उसके पास आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हमने सिर्फ उसको एक टाइप का वेलोसिटी दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी किसकी वजह से आया, ग्रेविटी की वजह से आया, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि इस ऑब्जेक्ट के पास दोनों कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, वर्टिकल भी होगा और हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो इस तरह से किसी टाइम में हमने देखा जब ये ऑब्जेक्ट P पे पहुंचता है तब उसके पास हम देखते हैं कि दोनों वेलोसिटी हमें मिलते हैं, Vx भी है इसके पास और Vy भी है, और इसका रिजल्टेंट होगा V, यानी V रिजल्टेंट क्या है, एक्चुअली उसका डायरेक्शन जो होगा वो V की डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। कंपोनेंट्स इसके पास दोनों होंगे, Vx भी होगा और Vy भी होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन दिस Vx remains constant throughout the motion, but Vy okay change and it increases actually due to gravity. Now students यहाँ तक हमारे समझ में आ गया, जब वैल्यूज ये करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से ये मिलता है। फिर वर्टिकल मोशन की जब बात करते हैं तो s इजिकल टू वाई होगा, यू वाई इजिकल टू जीरो होगा, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है इनिशियल, और ए वाई इजिकल टू प्लस जी होगा। प्लस जी क्यों है, बिकॉज द बॉडी इज कमिंग डाउन एक्चुअली, ओके, एंड एक्सेलरेशन विल आल्सो विल बी टुवर्ड्स डाउन, इसलिए जी प्लस होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, लेकिन जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इसलिए हम इसके लिए माइनस जी लेते हैं, okay, when the object going upward direction. When object comes down, then we'll take plus g, clear. So here we have taken ay is equal to plus g. Now putting these values, we will get y is equal to half gt square. This is equation 2, okay. Now students, जैसे कि हमने इससे पहले हमने स्टडी किया था, उस केस में हमने जब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करी थी तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके वहां से टाइम की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करके ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली थी। इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों को हमने साथ के साथ स्टडी किया और यहाँ से हमने t की वैल्यू फाइंड करी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन सेकंड इक्वेशन, देन व्हाट यू विल गेट, t is equal to x upon u। जब आप इसमें पुट करेंगे देन y is equal to becomes actually half g x upon u whole square, clear, and it becomes half g upon u square and x square को आपने अलग ले लिया, okay. Now we'll compare this equation with the इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज y is equal to kx square। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तब आपको k is equal to मिलेगा half g upon u square which is a constant actually। Now we can say the path which is covered by the projectile is a parabolic path, okay. Now this is an equation of parabola, hence the path of horizontal projectile is a parabola, students, okay. Thank you so much।